Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 4 of the chapter Magnetic Effect of Electric Current. And this video is for class 10 students. Lecture number 3 रे आमे discuss करथिले about the force acting on a current carrying conductor placed inside a magnetic field. And से class रे आमे discuss करथिले when a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, then it experiences a magnetic force. And the formula for that force is given by F equal to ILB sin theta. ILB sin theta. What is I? I is the amount of current flowing through the conductor or through the wire. L is the length of the conductor. B is the magnetic field. And theta is the angle between the current direction and the magnetic field. And I may discuss करथिले जदि conductor टा थिबो perpendicular to magnetic field, means the conductor is perpendicular to the magnetic field. In that case this theta will be 90 degree, so sin 90 will be 1, and in that case the conductor will experience maximum force. अब से maximum force रो value केते F max is equal to how much? It is I into L into B. Okay, and then I may discuss करथले about Fleming's left hand rule, by using which we can determine the direction of magnetic force on a current carrying conductor which is placed perpendicular to a magnetic field. जेते बेले गोटे current carrying conductor गोटे magnetic field को perpendicular हेकि थिबो, तो सेही केस रे ता ऊपर जो फोर्स आसीबो से फोर्स रो डायरेक्शन को फाइंड करिया पई हम यूज करिबा Fleming's left hand rule. So all these things were discussed in the previous class. तो आज लेक्चर नंबर 4 रे हम डिस्कस करिबा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. And the topic name is electric motor. So students, आमे समस्ते इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करूचे. आम घरे जो ग्राइंडर अच्छी, वॉशिंग मशीन अच्छी, फैन अच्छी, सब ये अप्लायंसेस रे आमे इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करूचे. एंड आमे इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करके आमे पानी भी उठौचे. आम घरे जो टांकी अच्छी, छात पर टांकी अच्छी, से टांकी को पानी उठाइबा पई आमे इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करूचे. सो आज रे क्लास रे आमे डिस्कस करिबा all the details about electric motor. तामाने what is electric motor, तारा principle कौन, तारा construction कौन, मतलब the different parts of कौन कौन अच्छी, and about the working of electric motor. So let's start. So students, first हमें लिखिबा what is the definition of electric motor. So remember that electric motor is an electrical device which converts electric energy to mechanical energy. So let me write here. Electric motor is an electrical device which converts electrical energy to mechanical energy. Electrical energy to mechanical energy. So हमें जानिचे जे energy can be converted from one form to another form. We cannot create energy, we cannot destroy energy, but we can convert energy from one form to another form. So this electric motor is a device which converts electrical energy to mechanical energy. Okay. Next we'll discuss about the principle of electric motor. तमाने इलेक्ट्रिक मोटर वर्किंग टा को प्रिंसिपल उपरे बेस. सो नाउ आई विल राइट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. आमे लास्ट क्लास रे कोन डिस्कस करथिले, जदी गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर अच्छे इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ or the working principle of electric motor. So let me write here. The working principle of electric motor is when a current carrying conductor is placed
in a magnetic field, in a magnetic field, it experiences a force. It experiences a force. जिते बड़े आमे गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर को गोटे मैग्नेटिक फील्ड भितर रखिबा, the current carrying conductor will experience a force, and yes, that is the principle of the electric motor. Next आमे डिस्कस करिबा about the construction. ता माने इलेक्ट्रिक मोटर डिफरेंट पार्ट्स विषय आमे डिस्कस करिबा, and then आमे डिस्कस करिबा about the working of electric motor. So the next part is what is the construction of electric motor. So construction विषय जानिया पई ऑलरेडी गोटे फिगर बा गोटे डायग्राम ड्रा करा हैछि. यू कैन लुक एट दिस डायग्राम. सो आमे एबे भलसे बुझिबा जे इलेक्ट्रिक मोटर रो डिफरेंट पार्ट्स कोन आ से डिफरेंट पार्ट्स रो वर्किंग कोन पाई में से जो पार्ट यूज करूचे. तो फर्स्ट देखो एठी गोटे स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट अछि. आमे जानि छै जे प्रत्येक मैग्नेट रो दुईटा पोल थाए. वन इज नॉर्थ पोल, द अदर वन इज साउथ पोल. सो इटा होची गोटे स्ट्रांग मैग्नेट रो नॉर्थ पोल, और इटा होची गोटे स्ट्रांग मैग्नेट रो साउथ पोल. ओके, एंड आमे जानि छै कोन ना द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे एंड ऑन साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट. तो मैग्नेट रो बाहरे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ता माने एठी जो दीटा पोल अछि आ भितरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन केमती आसीबो, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ठीक अछि, इन दिस डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड. एंड से जो दीटा पोल पीस अछि, सपोज एठी अछि नॉर्थ पोल, एठी साउथ पोल, से दीटा पोल पीस भितरे कोन अछि, गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल अछि. ए बी सी डी होछि गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल. एन एस कोन, एन एस होछि पोल पीसेस ऑफ ए स्ट्रांग मैग्नेट. Pole pieces of a strong magnet. Okay, A B C D कौन, A B C D होची गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल. रेक्टेंगुलर कॉइल, ए कॉइल रे आमे कॉपर वायर यूज करथाओ एंड इट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर. ठीक अछि. तबे देखो ए जो आमे जो रेक्टेंगुलर कॉइल नेचे, से रेक्टेंगुलर कॉइल रो दीटा एंड अछि. गोटे हला एंड ए आ गोटे होची एंड डी. ठीक अछि. तो आमे यदि भलसे फिगर को स्टडी करिबा देखि परिबा एंड ए इज कनेक्टेड टू दिस स्प्लिट रिंग, बा कोमे कहि परिबा हाफ रिंग पी, एंड द एंड डी इज कनेक्टेड टू अनदर स्प्लिट रिंग और हाफ रिंग क्यू. सो पी और क्यू कोन, पी एंड क्यू आर टू स्प्लिट रिंग्स. Split rings. So split ring ro meaning kon, let me erase all these things. Split ring ro meaning kon और split ring ro working टा kon आमे बुझिबा. देखो एटा होजी कोटे कंप्लीट रिंग, सर्कुलर शेप रो कोटे कंप्लीट इनते रिंग अछि. ठीक अछि. जदि मो कोन करबी ना ए रिंग को इक्वल माने हाफ रे डिवाइड कर देबी, तो एटा हे जिवो गोटे हाफ, एटा हे जिवो आ गोटे हाफ. ठीक अछि. तो एबे P आउ Q से माने हले स्प्लिट रिंग, माने से माने गोटे कंप्लीट रिंग होंती, माने गोटे कंप्लीट रिंग रो हाफ निया हिची. ठीक अछि. ता माने जदि मो P आउ Q को जॉइन कर देबी, मो गोटे कंप्लीट रिंग पाइबी. तो एटा होची स्प्लिट रिंग P, एटा होची स्प्लिट रिंग Q. ओके, एंड दिस रिंग इज मेड फ्रॉम मेटल. ठीक अछि. ए जो रिंग ने हिची एटा गोटे मेटल रे तयारी आ गोटे कंडक्टर रे तयारी. तो ये जो फिगर ड्रॉ करा है एबे देखो एंड ए इज कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग P एंड एंड D इज कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग Q. ओके, तो आमे ये जो स्प्लिट रिंग देचे, से स्प्लिट रिंग रो इनर साइड माने ए साइडटा, दिस साइड इज इंसुलेटेड. ठीक अछि. एठी गोटे इंसुलेटिंग लेयर दिया हिची. काहे कि तुम देखो स्प्लिट रिंग P और Q रो इनर साइड is connected to this cylinder. A cylinder का मैं कहबे axle. ठीक अछि. This cylinder is called as axle. तमे ये देखियो फिगर को स्प्लिट रिंग P और Q रो इनर सरफेस माने ए सरफेस टा is connected to the axle, and this inner surface of the split ring P and Q is insulated. गोटे insulating coat दिया है. But the outer surface
of the two split rings are conducting. Okay, so आमे बे कौन देखले नॉर्थ पोल साउथ पोल दीटा मैग्नेटिक पोल अच्छी गोटे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रो दीटा मैग्नेटिक पोल अच्छी आ से दीटा मैग्नेटिक पोल भितरे गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल अच्छी ए बी सी डी से रेक्टेंगुलर कॉइल रो दीटा जो एंड अच्छी फ्री एंड ए is connected to the split ring P and end D is connected to the split ring Q. ठीक अछि तो से दीटा स्प्लिट रिंग रो इनर सरफेस कोट लागि छि कनेक्टेड टू द एक्सेल. ठीक अछि एंड दिस एक्सेल इज सिलिंड्रिकल इन शेप. ठीक अछि तो से एक्सेल रो सपोज एटा होजी गोटे सिलिंड्रिकल एक्सेल. इमेजिन दैट एटा होजी गोटे सिलिंड्रिकल एक्सेल. तो गोटे स्प्लिट रिंग एमती अछि आ गोटे स्प्लिट रिंग एमती अछि. ओके ता माने P आउ Q रो इनर सरफेस को हमें इन्सुलेट करिचे आउ दीटा स्प्लिट रिंग P आउ Q रो आउटर सरफेस माने स्प्लिट रिंग P रो ए आउटर सरफेस आउ स्प्लिट रिंग Q रो ए आउटर सरफेस इज कनेक्टेड टू टू कार्बन बा टू ग्राफाइट ब्रशेस. ठीक अछि x एंड y फिगर देखो फिगर में जो x और y ड्रा करिचे X and Y they are made from carbon or graphite and we know that graphite is a conductor of electricity. तामने X और Y देकी electric current flow करी पारिबो. Okay, and if you look at this diagram here you can see that this carbon brush X is connected to the positive terminal of the battery. Battery रो positive terminal को X लागिची and the brush Y is connected to the negative terminal. तामने this brush X is always at positive potential and brush Y is always at negative potential. X, Y they are fixed. ठीक है X is always connected to positive of the battery, Y is always connected to the negative of the battery. तामने X होची higher potential, Y होची lower potential. ठीक है So these are the construction part of the electric motor. तब देखो suppose imagine करो a room रे this wall is the north pole and that wall is the south pole. ठीक है and the magnetic field lines they are directed from north pole to south pole. Okay, in this direction the magnetic field is directed and in between the two pole pieces I have a rectangular coil. A B C D होची गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल. ओके तो हम एबे डिस्कस करिबा अबाउट द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. सो हम एबे कोन डिस्कस करथिले जे इलेक्ट्रिक मोटर होची गोटे डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. सो हम देखिबा हाउ डज दिस इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. सो स्टूडेंट्स एबे देखो ए फिगर रे आमे जो कॉइल नेचे से कॉइल एमिति अछि एटा होची नॉर्थ पोल एटा होची साउथ पोल ए बी सी डी फिगर देखो एंड जस्ट लुक एट दिस बुक एटा होची गोटे रेक्टेंगुलर बुक से रेक्टेंगुलर बुक एमिति अछि एटा होची नॉर्थ पोल एटा साउथ पोल एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग लाइक दिस फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ पोल. दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी. And initially कौन है ना end A is connected to the split ring P और split ring P कहाँ को लगी to the carbon brush X and carbon brush X is connected to the positive of the battery. मन रखो the brushes X and Y are fixed से मैंने move करिबे नहीं. It means X is always at positive potential or higher potential, Y is always at negative potential or the lower potential. Is that clear? किंतु end A is connected to the split ring P, end D is connected to split ring Q. जेते बळे कॉइल टा एमती रोटेट करिवो जदी कॉइल टा रोटेट करे कॉइल सहित दीटा जो अछि स्प्लिट रिंग P and Q से माने मध्ये रोटेट करिवे. P and Q they are connected to end A and end D respectively. ठीक अछि स्प्लिट रिंग P is connected to end A, split ring Q is connected to end D. ता माने जदी कॉइल टा रोटेट करिवो देन कॉइल सहित दुईटा स्प्लिट रिंग मध्ये रोटेट करिवे किंतु X and Y द कार्बन ब्रशेस से माने रोटेट करिवे नाही. ओके अच्छा तो हमें बे कोन करिबा
जदि आम स्विच बा एक की को क्लोज करदे तबे कौन हम गोटे करेन्ट फ्लो हम आम जाचे जे इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो कर कौटू बैटेरी पॉजिटिव बाहर एठू करेन्ट बाहरला एमती आसला कार्बन ब्रश रे करेन्ट फ्लो होला एंड थ्रू द स्प्लिट रिंग गोटे मेटल रे तैयारी होता है ठीक अच्छे तो एमती आसब करेन्ट कार्बन ब्रश रे एंट्री करिवो देन थ्रू द स्प्लिट रिंग इट विल एंटर इनटू द रेक्टेंगुलर कॉइल आगुरी मुझे कही रखी जे स्प्लिट रिंग रो इनर सरफेस एटा हूँ गोटे इन्सुलेटिंग लेयर थाए से करेन्टा स्प्लिट रिंग रु एक्सेल को एंट्री करिवो नहीं बिकॉज दैट इज इन्सुलेटेड तबे कौन हम करेन्ट पॉजिटिव बाहरला एमती आसीबो थ्रू द कार्बन ब्रश एंट्री कला देन एंटर थ्रू द split ring and then it will enter into the rectangular coil तो एबे करंट केमती फ्लो करिवो A रु B B रु C C रु D and then again कार्बन ब्रश Y रे एंट्री करिकी बैटरी एंट्री करिवो ठीक अछि सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट तो आमे एबे देखिबा सपोज एटा होची गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल दिस एंड इज A एटा होची B एटा C एटा D ठीक अच्छे तो एबे आमे तेरे स्विच को ऑन करूचे ए बी अच्छी लेफ्ट साइड रे सी डी अच्छी राइट साइड रे तो एबे करंट केमिति फ्लो होची ए रु बी फ्लो हबो देन बी रु सी फ्लो हबो देन सी रु डी फ्लो हबो तो आमे एबे देखिबा जे मैग्नेटिक फील्ड केमिति अछि इन दिस डायरेक्शन ओके सो ए रेक्टेंगुलर कॉइल रो चारिटा साइड अछि ठीक अछि ए बी बी सी सी डी डी ए ओके तब देखिबा जस्ट लुक एट बी सी एंड डी ए बी सी आउ डी ए आमे देखो ए साइड दे देखिबा देन तुम देखि पारथबो बी सी रे करंट फ्लो होची इन दिस डायरेक्शन ओके मैग्नेटिक फील्ड अछि इन द सेम डायरेक्शन तो मैं लास्ट क्लास में पढ़थिले जदि गोटे कंडक्टर इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड along the magnetic field then it experiences zero force or it does not experience any force jodi magnetic field suppose empty achi this is the magnetic field and if I have a current carrying conductor which is parallel to magnetic field तो से केस रे से कंडक्टर ऊपर किछि फोर्स ऐड करिवो नाही सो आमे कोन देखले एठी BC and AD एटा होची BC एटा होची AD ठीक अछि so these two sides are parallel to the magnetic field. Magnetic field is directed from north pole to south pole. ठीक है in this direction. ता माने BC आउ AD ऊपर किछि magnetic force ऐड करिवो नाही. But look at AB and CD. एटा होची AB एटा होची CD. AB and CD are perpendicular to the magnetic field. एटा होची magnetic field direction. एटा होची AB एटा होची CD. ता माने AB and CD are perpendicular to the magnetic field and in the previous class hame kon discuss karthile if a current carrying conductor is placed perpendicular to the magnetic field it experiences maximum force ठीक अछि and say force रा direction hame केमति बाहर करिबा by using Fleming's left hand rule okay so बे देखो initially hame तेरे switch को on करिबा current केमति flow होबो A रु B flow होबो then B रु C रु D then again D रु बाहर की बैटरी एंट्री करिवो तो आमे कोन देखले एई दीटा साइड ऊपर किछि फोर्स आसु नाही बिकॉज़ दे आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड तो आमे देखिबा ए बी आउ सी डी ऊपर फोर्स रो डायरेक्शन कोन आसुची वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी तो भलसे देखो ए बी रे करंट केमिति फ्लो होची टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड सी डी रे करंट केमिति फ्लो होची अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड ठीक अछि तो एबे मु यूज करबी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन AB एंड ऑन CD ओके सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करिया पई रूल डा कोन ना वी हैव टू स्ट्रेच द थंब इंडेक्स फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड in mutually perpendicular direction. This index finger will point towards magnetic field, the central finger will point towards the direction of current and the thumb will point along the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो AB रे करंट फ्लो होची टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. ठीक अछि. एंड मैग्नेटिक फील्ड केमते अछि फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. सो मैग्नेटिक फील्ड अछि इन दिस डायरेक्शन एंड AB रे करंट फ्लो होची टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. सो एबे मु कोन करबी मोर इंडेक्स फिंगर और सेंट्रल फिंगर को एमिति अरेंज करबी सच दैट इंडेक्स फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड. देखो my index finger is pointing towards magnetic field and this is the central finger. The central finger will point along the direction of current. Current quite flow hoji, current flow hoji towards the whiteboard. So I have to rotate the central finger towards the whiteboard. एबे देखो index finger quite अच्छी, index finger is towards that wall, means along the direction of magnetic field, and the central finger is towards the whiteboard. Now my thumb is downward and thumb कौन शो करे, thumb शो करिबो direction of force on AB. ता माने AB ऊपर force आसीबो downward. Is that clear? So आमे जो coil नेथिले A B C D, AB ऊपर magnetic force आसीबो downward. तो आमे एबे again टेस्ट करिबा, देखिबा CD ऊपर magnetic force केमते आसीबो. तो करंट फ्लो होची A रु B, देन B रु C, C रु D. तो CD रे करंट फ्लो होची अवे फ्रॉम द बोर्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम अछि टुवर्ड्स दैट वॉल. तो मैं कोन करबी, आई हैव टू अरेंज द थ्री फिंगर्स. द इंडेक्स फिंगर विल पॉइंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स दैट वॉल, सो माय इंडेक्स फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड्स दैट वॉल. सेंट्रल फिंगर कौन पॉइंट करिवो along the direction of current. So current flow होजी away from the white board. ता माने सेंट्रल फिंगर एपटे पॉइंट कला. एबे देखो थंब कोड अछि, थंब अछि अपवर्ड. इज दैट क्लियर? ता माने CD ऊपर गोटे अपवर्ड फोर्स आसीबो, बट AB ऊपर गोटे डाउनवर्ड फोर्स आसीबो. एंड दीटा फोर्स रो मैग्नीट्यूड सेम. काहे कि ना CD रो लेंथ जहा AB रो लेंथ से हमें पढिचे in case of perpendicular magnetic field maximum force ର value केते हुए ILB. ठीक अछि. तो AB रे जेतिके अमाउंट रो करंट फ्लो होची, CD रे से सेम अमाउंट रो करंट फ्लो होची. त माने I कोन कांस्टेंट फॉर द टू conductors AB and CD. They have same length because this is a rectangle. Rectangle रो opposite side have the same length. त माने AB रो लेंथ जहा CD रो लेंथ से, so L is fixed and magnetic field is also fixed. It has got a uniform magnetic field region. Okay, तो हमें भी कौन देखले AB ऊपर एटा होची A B C D. AB ऊपर गोटे डाउनवर्ड फोर्स ऐड करूची आ CD ऊपर गोटे अपवर्ड फोर्स ऐड करूची. तबे कौन हबो, द कॉइल विल रोटेट. AB तळकु जीवो, CD ऊपर को आसीबो. ठीक अछि. द कॉइल विल रोटेट लाइक दिस. ओके, सो एबे कहला ना कॉइल रोटेट करिवो. एंड इन एडिशन टू द कॉइल एबे देखो कॉइल रो ए एंड लागिची स्प्लिट रिंग P को एंड एंड D इज कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग Q. जते बेले कॉइल रोटेट करिवो, कॉइल सहित द टू स्प्लिट रिंग आल्सो दे विल आल्सो रोटेट. ठीक अछि. तो एटा होची A B C D. A B जीवो तळकु, C D आसे ऊपर को. तो एमती. ठीक अछि. हाफ रोटेशन परे आक हम कहबा हाफ रोटेशन. आफ्टर हाफ रोटेशन कोन हबो, A B पळेबो टू द राइट साइड. ठीक अछि. एटा A B C D. सो आफ्टर हाफ रोटेशन A B विल गो टू राइट साइड, C D विल कम टू लेफ्ट साइड. ता माने एबे देखो A B विल गो टू द प्लेस ऑफ C D and C D will come to the place of A B. ता माने इनिशियली एटा A एटा B C D थिला. एबे कोन हबो, एमती रोटेट कला परे आफ्टर हाफ रोटेशन A B will go to right side and C D will come to left side. जेते A B राइट को जीवो, A B सहित स्प्लिट रिंग P will also go to right side. ठीक अछि. एंड C D आसीबो लेफ्ट को एंड C D सहित स्प्लिट रिंग Q will also come to left side. बट मु स्टार्टिंग रे कहिची x and y they are fixed, से माने मूव करिबानी.
X is connected to positive of the battery, Y is connected to negative of the battery. तमने X is always at higher potential, Y is always at lower potential. ठीक अच्छे. तो after half rotation जेते ए बी जाउची राइट साइड को, सी डी आसुची लेफ्ट साइड को, तो एबे कोन हबो? सो एबे कोन आसीबो? एटा हे जिवो ए, एटा हे जिवो बी, एटा हे जिवो सी, एटा हे जिवो डी. इज दैट क्लियर? ओके. एटा हे जिवो ए, एटा हबो बी, एटा हबो सी, एटा हबो डी. तमन एटा ए थला बी सी डी एबे एमते हे जिवो. ठीक है. ओके. तो एबे कोन हबो? एबे जो करंट फ्लो हबो, एबे देखो एंड डी इज कनेक्टेड टू एक्स. एबे एटा हे जिवो क्यू, काहे कि ना एंड डी रे लागितला स्प्लिट रिंग क्यू आ एंड ए रे लागितला स्प्लिट रिंग पी. ठीक अछि. कॉइल सहित स्प्लिट रिंग मध्य रोटेट करिवो. ओके. बट एक्स वाई आर फिक्स्ड. तो आफ्टर हाफ रोटेशन कोन होची? आफ्टर हाफ रोटेशन एबे कोन हबो? D will be connected to end X and A will be connected to end Y. ता माने एबे कोन हबो? करंट फ्लो हबो केमती? D रु C, C रु B, B रु A. फर्स्ट केस रे कोन होतला? करंट फ्लो होतला A रु B, B रु C, C रु D. एबे कोन हबो? आफ्टर हाफ रोटेशन करंट रा डायरेक्शन चेंज हे जिवो. इज दैट क्लियर? फर्स्ट केस रे कोन होतला ना करंट फ्लो होतला A रु B, B रु C, C रु D. बट आफ्टर हाफ रोटेशन कोन हेजिवो? करंट उल्टा फ्लो हबो. इन द रिवर्स डायरेक्शन करंट फ्लो हबो. D रु C रु B and B रु A. Because end D is connected to X. End A is connected to Y. Is that clear? अच्छा. तबे कोन हेछि? एडा हला D C B A. अच्छा. एबे करंट केने फ्लो होछि? D रु C फ्लो हबो. देखो D रु C फ्लो होछि. एडा D एडा C. इमेजिन करो ए बी सी डी थला, ए डी एंटा कौन हबो? एमती आसीबो. तो एडा हे जिवो डी, एडा हला सी बी ए. तो एबे डी सी रे जो करंट फ्लो होची केम फ्लो होची? फ्रॉम डी टू सी, ता माने टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. आउ ए बी रे केमती करंट फ्लो होची? बी रु ए करंट फ्लो होची, ता माने अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड. तो आमे भी देखिबा वर्तमान जेते हाफ रोटेशन परे डी सी लेफ्ट को आसुची आ ए बी राइट को जाउची. तो सेही केस रे डी सी ऊपरे फोर्स रो डायरेक्शन कोड हबो. अगेन हम यूज करबा फेमस लेफ्ट हैंड रूल. तो वर्तमान हाफ रोटेशन परे डी सी रे करंट फ्लो होची टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. तबे हम कोन करबी? अगेन मैग्नेटिक फील्ड अछि टुवर्ड्स दैट वॉल, करंट फ्लो होची टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. तो द थंब इज डाउनवर्ड. ता माने मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड. तम एबे कोन हबो? डीसी ऊपरे जो मैग्नेटिक फोर्स ऐड करिवो डाउनवर्ड हे जिवो. एंड अगेन ए बी रे करंट केमि फ्लो होची? बी रु ए फ्लो होची अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड. तबे कोन हबो? एम शो करिवि. इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटिंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, द सेंट्रल फिंगर इज अलोंग द करंट and thumb is upward. Means the magnetic force on AB is upward. ठीक अछि. तबे कोन हबो? DC तळ को जीवो, AB बा BA ऊपर के आसीबो. ठीक अछि. एमति आसला. ता माने आको में कहबा फुल रोटेशन. स्टार्टिंग रे कोन थला? स्टार्टिंग रे AB थला लेफ्ट रे, CD थला राइट रे. तो फर्स्ट हम स्विच को ऑन कले. एबे कोन हबो? AB तळ को मूव करथला, CD ऊपर को मूव करथला. हाफ रोटेशन परे कहला पोलैरिटी चेंज हे जिवो. एबे CD रे करंट फ्लो हबो, D रु C फ्लो हबो. अगेन DC जिवो तळ को, AB आसे ऊपर को. ठीक अछि. ता माने कंटीन्यूअसली कोन हबो? हमें करंट पास करथबा आ कोन हतबो? आफ्टर ईच हाफ रोटेशन करंट रा डायरेक्शन चेंज हबो. करंट रा डायरेक्शन चेंज करिया पई की रिस्पांसिबल? दिस कम्यूटेटर. ओके. बा हमें जो यूज करते स्प्लिट रिंग को हमें कहूजे कम्यूटेटर. The device which changes the direction of current or which reverses the direction of current is known as commutator. तो यही इलेक्ट्रिक मोटर केस रे हमें जो दीरा स्प्लिट रिंग यूज करते P and Q, they act as commutator. तबे कोन हबो? हमें करंट पास करेबा. आफ्टर ईच हाफ रोटेशन करंट रा डायरेक्शन चेंज हबो एंड ऑलवेज कॉइल दा एम्प्टी
रोटेट करिवो ता माने जो एंडटा बा जो साइडटा लेफ्ट रे थिबो से तळ को जीवो जो साइड थिबो राइट रे से ऊपर को आसीबो ओके सो कंटीन्यूअसली कोन हबो कॉइलटा एम्ति घुरिबो ठीक अछि द कॉइल विल रोटेट लाइक दिस एंड जदी कॉइल रोटेट करिवो दिस एक्सेल विल आल्सो रोटेट ओके सो इन दिस वे आमे कोन कले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करिकि आमे कॉइल को रोटेट करि परिबा ठीक अछि एंड यूजिंग दैट रोटेशनल एनर्जी आमे किछि वर्क करि परिबा सो स्टूडेंट्स होपफुली तमे समस्ते बुझी परिचो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड देयर फंक्शंस आमे डिस्कस कले इलेक्ट्रिक मोटर ता केमति एक्ट करे तो ए जो दीटा पोल पीस अछि से माने गोटे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिवे आ एक कॉइल में करंट फ्लो करेबा जितने में कॉइल रे करंट फ्लो करेबा बे कोन हबो कॉइलटा रोटेट करिवो ठीक अछि एंड दी हमें जो दीटा यूज करिचे स्प्लिट रिंग P and Q तांकर फंक्शन कोन दे विल चेंज और दे विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ठीक अछि एंड X and Y जो लागि छि दीटा कार्बन ब्रश लागि छि दे मेंटेन द इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी इन द सर्किट ठीक अछि so this is all about the principle working and construction of electric motor तो आमे एटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आमे एम्ति फिगर ड्रा कले किंतु कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर जो यूज करा जाए कमर्शियल पर्पस पई तो से कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर रे आमे गोटे परमानेंट मैग्नेट यूज करि न थाउ ठीक अछि इन केस ऑफ कमर्शियल मोटर्स instead of using this permanent magnet हमें कौन यूज करो हमें यूज करता इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन ना हमें करंट पास करेबा ठीक अछि करंट पास करेबा थ्रू ए कॉइल एंड दैट कॉइल विल बिहेव एज ए मैग्नेट ठीक अछि अब करंट ऑफ कर देले कोन हबो तर मैग्नेटिक फील्ड भी ऑफ हे जिवो सो रिमेंबर दैट इन केस ऑफ कमर्शियल मोटर्स वी डोंट यूज परमानेंट मैग्नेट इंस्टेड वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड in case of these commercial motors हमें कौन करूँ हमें जो coil यूज करूँ that coil has many turns एठे में गोटे सिंगल टर्न नहीं चाहिए but in case of commercial motors हमें गोटे सिंगल टर्न coil न नहीं कि हमें multiple turn रो coil नहीं था कहीं कि हमें जेते अधिक number of turns नबा कौन हबो सेते अधिक amount रो force आसीबो और सेते अधिक जोरे कौन मोटर रो जो coil टा घुरिबो ठीक अछि सो दैट वी कैन हैव मोर वर्क हमें अधिक अमाउंट ऑफ वर्क करि परिबा बा से मोटर रो पावर बढ़ि जिवो ओके सो फर्स्ट पॉइंट कोन इन केस ऑफ कमर्शियल मोटर हमें कोन यूज करू वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस परमानेंट मैग्नेट वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए सिंगल टर्न वी टेक मल्टीपल टर्न एंड हमें जो कॉपर वायर नोचे मल्टीपल टर्न रो दैट कॉपर वायर इज वुंड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गोटे सॉफ्ट आयरन रा कोर ऊपर से कॉइल को हमें कोन करथाउ ताको हमें वुंड करथाउ ठीक अछि तो सॉफ्ट आयरन यूज कले कोन हबो ना मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ि जिवो आ जदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़िबो ताले कोन हबो इलेक्ट्रिक मोटर रो पावर टा भी इंक्रीज हबो ओके सो दीज आर ऑल द डिटेल्स अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर सो तमे खाली मन रखिबो इलेक्ट्रिक मोटर कहा कहंती तार प्रिंसिपल कोन तार डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोन एंड व्हाट इज वर्किंग होपफुली you have understood everything about this topic and this is very important question from the exam point of view if you have understood everything then please hit the like button and if you are new to my channel then please subscribe to it and press the bell icon to get all the future notifications and share this video among your friends so that everyone will be benefited and again thanks a lot for watching this one.